آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھیں کون دے گا جواب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. السلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے آپ کا امتحان. اس آواز میں آپ کا امتحان. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ کا امتحان، اور اس میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات ملے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے. پیارے بچوں، آئیے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ کا امتحان کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ہماری سیدھی طرف ہے ٹیم مدنی، ٹیم مدنی، اور الٹی جانب ٹیم مکی، ٹیم مکی. اور ہمارے ساتھ ٹیم مدنی میں حسین بھائی ہیں، نعت خواں. حسین بھائی خیریت سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہے ہمارے مصطفیٰ. مصطفیٰ بھائی، ماشاءاللہ. جی اس جانب ٹیم مکی کی جانب کون ہے؟ شعبان. شعبان بھائی. شعبان بھائی کے ساتھ کون ہے؟ مرتضیٰ. مرتضیٰ بھائی، ماشاءاللہ. یہاں پہ مصطفیٰ ہے، یہاں پر مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے اپنے پروگرام آپ کا امتحان میں ہم کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شعبت غاتنا. واہ کیا جود و کرم ہے شعبت غاتنا. نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مرغبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. مرغبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے.
खुश खुशारा है मरहबा मुकद्दर आज मुस्कुराया है। सुभान अल्लाह। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने शामिल किया हमारे प्रोग्राम आपका इम्तिहान में कलाम। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है लफ्ज़ों की तोड़ जोड़। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। मेरे बच्चे सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि हमारे साथ टीम मदनी है और टीम मक्की है। मेरे बच्चे होगा कुछ यूँ इस सेगमेंट में कि हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे, कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे, उनकी स्पेलिंग आगे पीछे होगी, उनकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं होगी। आपने क्या करना है कि उसकी स्पेलिंग दुरुस्त करके उसको एक मुकम्मल वर्ड बनाना है। टीम मक्की को एक वर्ड दिखाया जाएगा, दिखाए कहानी है क्या क्या जी, इसको आपने दुरुस्त करना है और आपके पास 10 सेकंड्स होंगे, इसमें आपने इसको दुरुस्त करना है। आप मशवरा भी कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। चलिए आइए इसका दुरुस्त वर्ड देखते हैं। प्रॉफिट। क्या है इसका दुरुस्त वर्ड? प्रॉफिट। अगले वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। सुनानी एक कहानी है गुंबद। गुंबद। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, गुंबद का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। चलिए मेरे बच्चों बढ़ते हैं टीम मक्की के अगले वर्ड की जानिब। जी, वर्ड दिखाए। अब ये बताएं ये क्या है? इम्तिहान, चलो देखें कौन देगा जवाब। जल्दी बताएं, मशवरा भी कर सकते हैं आप, मशवरा करने की इजाजत है। पूछनी पहली है सुनानी एक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका वक्त खत्म हो चुका है और आप जवाब नहीं दे सके। इसका दुरुस्त देखते हैं। चलो देखें कौन देगा। मुसल्ला। क्या है? मुसल्ला। मुसल्ला इसका दुरुस्त जवाब है और आप जवाब नहीं दे सके। जी, अगला वर्ड दिखाएं टीम मक्की को, इसको आपने दुरुस्त करना है। करें। RAAQHSHI। 10, 9, 8, 7, 6। इशराक। इन्होंने बोला इशराक। आइए चल के देखते हैं कि इशराक है या कोई और वर्ड है। इशराक। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। अगले वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। टीम मक्की को अगला वर्ड दिखाएं। टीम मक्की का लास्ट वर्ड है DATIBA। पूछनी पहली है सुनानी एक कहानी है पूछनी पहली है सुनानी एक कहानी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। इबादत। इबादत है। देखते हैं इबादत है या कोई और वर्ड है। इबादत। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। मेरे बच्चों आइए बढ़ते हैं टीम मदनी की जानिब और टीम मदनी को देखते हैं कि आज कौन से अल्फाज मिल रहे हैं। जी, इसकी स्पेलिंग को दुरुस्त करना है आपने। हुसैन भाई। मनकबत। मनकबत। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या फिर कोई गलती हो गई है। मनकबत। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगला वर्ड दिखाएं टीम मदनी को, हुसैन भाई की टीम को। नात। नात। देखते हैं ये नात है। नात। और आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, माशाल्लाह। जी, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड दिखाएं। अतार। अतार है ये, सुभान अल्लाह। देखते हैं अतार। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। हुसैन भाई की टीम का ये भी जवाब दुरुस्त हो गया है। अगले वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। अगला वर्ड दिखाएं टीम मदनी को। हिदायत। देख लें कहीं गलती ना कर रहे हो। हिदायत है ये। हुसैन भाई स्पेलिंग चेक कर लें। जी जी, हिदायत।
हिदायत। और आपका जवाब ये भी दुरुस्त है माशाल्लाह। टीम मदनी के 4 जवाबात दुरुस्त हो गए। अगले वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप जवाब नहीं दे सकते अपने वक्त में, और इसका दुरुस्त जवाब देखते हैं। एक कहानी है क्या? इसका दुरुस्त जवाब है रियाजत। क्या है? रियाजत। मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट था लफ्जों की तोड़ जोड़। आइए अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है सही और गलत। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। इस सेगमेंट का फॉर्मेट कुछ यूँ है कि टीम मक्की को मैं कुछ जुमले दूंगा और टीम मदनी को भी कुछ जुमले दूंगा। मैं जैसे ही जुमला पढ़ूंगा तो आपने 2 वर्ड्स में से एक वर्ड बोलना है, सही या गलत बोलना है आपने। अगर जुमला आपको दुरुस्त लगे कि हाँ ऐसा ही है तो आपने बोलना है सही। अगर आपको जुमला गलत लगे कि ऐसा नहीं है तो आपने बोलना है गलत। क्या बोलना है? गलत। तैयार हैं आप सब? तैयार है? टीम मदनी तैयार है? हुसैन भाई तैयार है? और टीम मक्की? जी। तो पहले बढ़ते हैं टीम मक्की की जानिब, और टीम मक्की को मैं एक जुमला दूंगा। पहला जुमला, मनो सलवा बनी इसराइल कौम पर नाजिल हुआ था। सही। सही। आपका जवाब सही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। गलत। आपका जवाब दुरुस्त है। अगला जुमला, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। सही। आपने कहा सही, जबकि आपका जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब ये है कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। जी। अगला जुमला आपके लिए, ज़ुन्नूरैन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सही या गलत? गलत। गलत। और आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब है। जी मेरे बच्चों, ये तो थी टीम मक्की। आइए बढ़ते हैं टीम मदनी की जानिब। इनसे भी मैं कुछ जुमले पूछूंगा। गुस्ल के 5 फराइज हैं, सही या गलत? गलत। गलत। आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि गुस्ल के 5 फराइज नहीं बल्कि 3 फराइज हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, सारे बदन पर पानी बहाना। अगला जुमला, दूध को अरबी में लबन कहते हैं। सही। सही। और आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह फील है। गलत। 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 और आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर है। अगला जुमला, सफरे मेराज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। गलत। 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 और आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के सफ़र में साथ थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के 5वें खलीफा थे। सही या गलत? सही। सही। और आपका जवाब सही है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वाला सेगमेंट भी हुआ। आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है कहानी। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है कहानी, और इस सेगमेंट में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आपने वो कहानी गौर से सुननी है। फिर मैं कहानी सुनाने के बाद आपसे उस कहानी के मुताबिक सवालात भी करूंगा, और आपने कोशिश करनी है कि आप सारे जवाबात दुरुस्त दें। और सारे जवाबात दुरुस्त देने के लिए आपने कहानी को गौर से सुनना है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज की कहानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में है। चलिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि गौस का मतलब क्या है। लफ्ज़ गौस के मायने हैं फरियाद को पहुँचने वाला। फरियाद को पहुँचने वाला, या यूँ कह लें फरियाद पूरी करने वाला। आप रहमतुल्लाहि अलैह को गौसे आज़म कहा जाता है। आप रहमतुल्लाहि अलैह को गौसे आज़म कहा जाता है। आइए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का एक सच्चा वाक़या सुनते हैं। एक सच्चा वाक़या सुनते हैं। सरकारी बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से बगदाद काफिले के साथ रवाना हुआ, और जब हम हमदान से आगे पहुँचे तो 60 डाकू काफिले पर टूट पड़े और सारा काफिला लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझे कुछ ना कहा। किसी डाकू ने भी मुझे कुछ ना कहा। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ए लड़के तुम्हारे पास भी कुछ है? ए लड़के तुम्हारे पास भी कुछ है? मैंने जवाब में कहा हाँ। जवाब में हाँ कह दिया, डाकू को बता दिया कि मेरे पास है। डाकू ने कहा क्या है? मैंने कहा 40 दिनार। 40 दिनार? कितने दिनार? 40 दिनार है मेरे पास। मेरे बच्चों, दिनार पहले के वक्तों में सोने के सिक्के हुआ करते थे। सोने के सिक्के हुआ करते थे। इसने पूछा कहाँ है? मैंने कहा गुदड़ी के नीचे।
یعنی ان کی امی جان نے حفاظت کے طور پر وہ پیسے ان کے کپڑوں میں سی دیے تھے۔ ڈاکو سچی بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا، یعنی وہ ہنستا ہوا چلے گیا ڈاکو کہ اس بچے کے پاس 40 دینار ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور میں نے اس کو بھی یہی جوابات دیے۔ وہ پھر اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا، یعنی پہلا ڈاکو آیا وہ بھی مذاق سمجھتے ہوئے چلا گیا اور دوسرا ڈاکو آیا اس سے بھی اسی طرح مذاق سمجھ کے وہ بھی چلا گیا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا، تو ان کے سردار نے مجھے وہاں بلایا۔ وہ مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی سامنے آئی تو اس نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آخر تم نے ہم سے سچ کیوں بولا، آخر تم نے ہم سے سچ کیوں بولا؟ لوگ تو ہم سے جھوٹ بول کر اپنا مال بچا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا امی جان کی نصیحت کی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، امی جان کی نصیحت کی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا ہمیشہ سچ بولوں گا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار کا دل بدل گیا اور پھر وہ سردار رو کر کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا نہیں ہے اور میں نے ساری عمر اپنے رب اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے بلکہ ان وعدوں کے الٹ ہی کرتا رہا۔ اسی وقت اس نے ان 60 ڈاکوؤں کے ساتھ میرے ہاتھ پر اللہ پاک سے توبہ کی اور قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ میرے بچوں دیکھا آپ نے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سچ بولنے کی برکت سے گناہگار ڈاکو گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے والے بن گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سچ بولنے کی کوشش کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ جی پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ کہانی۔ پیارے بچوں اب اسی کہانی سے اسی واقعے سے ریلیٹڈ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ ایک سوال کروں گا ٹیم مدنی سے اور ایک سوال ٹیم مکی سے۔ پہلا سوال ہے ٹیم مدنی سے، لفظ غوث کا کیا مطلب ہے؟ فریاد کو پورا کرنے والا۔ فریاد کو پورا کرنے والا، لفظ غوث کا مطلب ہے فریاد کو پورا کرنے والا اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال اور سوال ہے ٹیم مکی سے، جن بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا ان کا نام کیا ہے؟ آسان سوال آ گیا۔ غوث پاک۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سفر کس کے لیے کیا تھا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سفر کیا تھا اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ٹیم مکی سے اور سوال ہے آپ رضی اللہ عنہ کس شہر علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے؟ جیلان شریف۔ نہیں، جواب غلط ہو گیا آپ کا۔ جیلان میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، آپ جیلان سے بغداد شریف گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہماری ٹیم مدنی سے، سفر کے دوران کیا حادثہ پیش آیا؟ 60 ڈاکوؤں نے ان کا پورا قافلہ لوٹ لیا۔ 60 ڈاکوؤں نے ان کے پورے قافلے کو لوٹ لیا اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تک کہانی میں نے آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سنائی، سچا واقعہ سنایا۔ میرے بچوں ہمیں اس واقعے سے سبق کیا ملا؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں۔ اس واقعے سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند پہلو یعنی انداز ہمارے سامنے آئے، جو یہ ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر کرنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا یعنی وعدے کو پورا کرنا، اور سب سے اہم آپ رضی اللہ عنہ کا سچ بولنا۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام آپ کا امتحان کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قسمت آزمائے۔ آپ کا امتحان، آپ کا امتحان۔ پیارے بچوں ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ قسمت آزمائے میں، اور اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا، ہمارے پاس کچھ باکسز ہیں، 8 باکسز ہیں یہ۔ اب ان کے پیچھے ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے، تو آپ نے بتانا ہے، آپ نے پہلے ایک باکس چوز کرنا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس باکس کے اندر کیا ہے۔ میں آپ کو کچھ ہنٹس دوں گا تو آپ نے بتانا ہے کہ اس باکس کے پیچھے کیا ورڈ ہے۔ تو پہلا باکس چوز کریں۔ نمبر 1۔ تو پہلا باکس آپ نے چوز کیا ہے نمبر 1۔ اس کی پہلی ہنٹ ہے پیلے رنگ کا ایک پھل ہے۔ کیلا۔ کیلا؟ آم بھی تو ہوتا ہے۔
आम भी होता है। अगली हिंट लेंगे हुसैन भाई? नहीं की नहीं लेंगे पक्का? चलिए आइए खोल के देखते हैं कि इसमें केला वर्ड ही है या कुछ और है। नंबर 1 इसमें है केला और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, हुसैन भाई की टीम का जवाब हो गया है दुरुस्त। अगला टीम मक्की बॉक्स चूज करेगी। 8 नंबर 8 आपने कहा है। नंबर 8 की पहली हिंट है एक शख्सियत जिनके पास बहुत सारा इल्म होता है। पिछली पहली है सुनानी एक कहानी है क्या क्या अगली हिंट दूं? पिछली पहली है सुनानी एक कहानी है क्या क्या मुफ्ती मुफ्ती मुफ्ती। हाँ आपने जवाब दिया मुफ्ती। अब देखते हैं इसमें मुफ्ती वर्ड है या कुछ और है, क्योंकि आलिम के पास भी इल्म होता है। क्या होगा इसमें? मुफ्ती होगा पक्का? इसमें वर्ड है मुफ्ती और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी टीम मदनी की जानिब बढ़ते हैं। अब आप कोई बॉक्स चूज करें। नंबर 2 नंबर टू की पहली हिंट है अमीर अहले सुन्नत की एक मशहूर किताब है। दूसरी हिंट दूसरी हिंट भी दूं? अच्छा, जिसके नाम का पहला लफ्ज गईन है। मशहूर किताब है अमीर अहले सुन्नत की और उसके नाम का पहला लफ्ज है गईन। गीबत की तबाहकारियाँ गीबत की तबाहकारियाँ। अब देखते हैं गीबत की तबाहकारियाँ हैं नंबर 2 में या कुछ और है, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत की एक मशहूर किताब है। हुसैन भाई देख लें दोबारा। गीबत की तबाहकारी गीबत की तबाहकारियाँ अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर की है। अच्छा देखते हैं नंबर 2 में गीबत की तबाहकारियाँ और हुसैन भाई की टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी टीम मक्की एक बॉक्स चूज करें। नंबर 4 नंबर 4 की पहली हिंट है एक इस्लामी महीना है जो एहतराम वाला महीना है। इम्तिहान चलो देखे कौन इस्लामी महीना है और एहतराम वाला महीना है। पिछली पहली है सुनानी एक कहानी है क्या क्या दूसरी हिंट इस महीने में नियाज और इसाले सवाब का भी खूब एहतमाम किया जाता है। मुहर्रम रब्बीउल अव्वल में भी तो होता है। तीसरी हिंट भी ले लें? मुहर्रम शरीफ तीसरी हिंट दूं? नहीं दूं पक्का? मुहर्रम। चलिए देखते हैं कि नंबर 4 में क्या है। बच्चों आज है नंबर 4 में इम्तिहान चलो देखो बोलूं? कौन देगा नंबर 4 में मुहर्रम शरीफ और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट तक किस्मत आजमाएं और देखा आपने आज का हमारा प्रोग्राम आपका इम्तिहान। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिला होगा। कहानी सेगमेंट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और सही और गलत जो हमारा सेगमेंट था उससे भी उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में बहुत सारी मालूमात के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान बच्चों आज है आपका इम्तिहान